Yes, good morning, all of you. So, through with your hello session, of course. New faces, not very new to me. You were there with me at PA Foundation, most of you. Okay. So, the subject we will be dealing now is financial management. There's a lot to talk about its introduction, but I will divulge with introduction with times to come, not now. But yes, little brief, 5 minutes brief, and we will hit the topic straight away. Financial management, one of the, you may say, most important subject vis-a-vis your job employability is concerned. Because as chartered accountants, what you do most is either accounting, auditing, and the third thing is financial management. Although the forte for financial management is evading, and it is fast passing on to top business school students. But as chartered accountants, you obviously have an edge because you have base knowledge. Those who do MBA, they do not have that base knowledge, but you have. You have done accounting since +1, +2, you know law, you know taxation. For you to give financial consultancy is much valued. But of late, because this course is designed like this, that it is a distance learning course, and personality traits do miss, our communication skills, our presentation skills are not at par. So chartered accountants are losing. And 20 years back, there was no boardroom where the CFO was not a chartered accountant. But yes, this percentage has gone down. But this is the most lucrative white collar job. Accounting is slogging, auditing is slogging, timelines and rewards are there. But of course, it is in a limited manner. When you practice financial management, you are concerned with top corporates. Of course, your remunerations are at a great level, higher level. The chartered accountancy course has recognized it. Earlier, it was together with cost accounting. Now they have split it. 50 marks financial management, 50 marks is strategic management. So it has been segregated from second practical subject. Cost accounting is also practical, but cost accounting is mostly practiced by cost accountants. And costing requirements are only for big corporates. Therefore, employability is slightly ticklish if you work as a cost accountant. But as chartered accountants, you have wide array of works to perform, as I've already told you. Taxation, GST, accounting, auditing, financial consultancy, all are your fortes. As far as subject is concerned at interlevel, I have already told you it is a 50 marks subject. And two aspects are introduced at interlevel. A is how to raise finance, and second is how to utilize finance. Because these are the only two things that make the whole subject financial management. What are the concepts we need to learn while raising funds? What are the concepts we need to learn while utilizing funds? We will open up on this as time will come. So only two aspects. Numbers are on platter. Numbers again, I am lucky enough to offer you subjects where you score heavily. Economics was scoring. This as well is very, very scoring.
here the level of knowledge expected, because this is a new subject for you, it is not expert level, it is working level knowledge that is expected out of you while attempting this paper. So the difficulty level is also not very high. So 50 marks, it is on platter, it is practical subject, you can cover up for some lackluster performances in other subjects. This is easy, this is conceptual, this is highly scoring. Only input that I will require from your side is inputs that will come from my side, I will divulge little later. Only input I wish from your side is that you should be attentive, attending my class, listening me carefully. This is not once it is a 50 mark subject, it is also not a very lengthy subject. It will take around 2.5 months to 3 months to complete this. Very slowly, very gradually, doing all questions, max it will take this much. Okay, so either you are online or offline, you need not to miss a class, because there will be always a link to a next class. If you miss a class, you will miss the bridge. कुछ ना कुछ बीच में से छूटेगा बेटा. So this is only thing that I require. Obviously the inputs from our side, you have got my financial management book, you have got books from Institute of Chartered Accountancy. You will have my lectures offline, available online also. In case you don't understand what I have told in class, you can just rerun, re-listen, re-ask. Is it okay? All these inputs should be there. So let's hit something practical. I said important thing in financial management is how to raise funds. तो अब एक बात तो मुझे समझ में आती है कि फंड्स, फाइनेंस इज लाइफलाइन ऑफ एवरी बिजनेस. बिना पैसों के तो कोई बिजनेस चल नहीं सकता. और हमारे को समय के ऊपर जिस समय जरूरत है उस समय पैसा चाहिए. जितने पैसे की जरूरत है उतना पैसा चाहिए. और इसके साथ साथ मैं ये भी चाहूंगा, कोई भी पैसा बिना खर्चे के रेज नहीं होता बेटा. किसी भी पैसे को जब हम रेज करते हैं, वी इंकर अ कॉस्ट. आप एज लेमैन मुझे बताइए, आप क्या चाहेंगे? Luckily we have not written anything, it was all verbal. अच्छा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप क्या चाहेंगे, से 1 लाख रुपया रेज करना है. ऑब्वियसली 1 लाख को रेज करने का खर्चा तो होगा कुछ. या तो आप ब्याज पे करोगे 10% साल का, 12%, वॉट एवर, 12,000 रुपया खर्चा हो गया एक तरह का. या फिर आप इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे, तो उसके लिए में क्या पे करना पड़ता है? डिविडेंड पे करना पड़ता है. अगर आप अपने पास्ट रिजर्व्स भी यूज करेंगे, तो पास्ट रिजर्व्स भी हमने शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट्स को काट काट कर बनाया हुआ है. उसके लिए भी हम शेयर होल्डर्स को ही उत्तरदायित्व है हमारा, कि उनको ही हमें पैसा कमा के देना है. तो ये मिथ है कि कोई भी फंड्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट. नन ऑफ द फंड्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट. तो इफ गिवन अ चॉइस, आप कौन से सोर्स से फंड्स रेज करना पसंद करेंगे, जिनकी कॉस्ट ज्यादा है या जिनकी कॉस्ट कम है? इवन एज लेमैन, इवन एज एक्सपर्ट, वी वुड से कि जिनकी कॉस्ट क्या है? कम है. और सिर्फ हम कॉस्ट को नहीं देखेंगे बेटा, एक चीज और भी देखेंगे, दैट इज रिस्क. रिस्क ऑफ रेजिंग फंड्स. आप डिवेंचरों के थ्रू पैसा रेज करते हैं, उसके अगेंस्ट ब्याज पे करना है, ब्याज नहीं पे कर पाए तो उन लोगों के पास आपके एसेट्स के ऊपर क्या है, फिक्स्ड या फ्लोटिंग राइट्स हैं, वो एक्सरसाइज कर सकते हैं. आपके कंपनी के एसेट बिक जाएंगे, कंपनी वाइंड अप होने का क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा. सॉल्वेंसी रिस्क इन्वॉल्व है. शेयर होल्डर्स के साथ ऐसा रिस्क नहीं है. शेयर होल्डर्स के थ्रू अगर हम पैसा रेज करते हैं तो फिर क्या होता है कि भाई उसमें तो आपके पास प्रॉफिट्स है तभी डिविडेंड देना है, अगर प्रॉफिट्स नहीं है तो डिविडेंड ना दीजिए. कंपनी बंद होने का खतरा तो नहीं है. तो हमारे को कॉस्ट भी कंसिडर करना है, रिस्क को भी क्या करना है, कंसिडर करना है. और एक होती है ऑनरशिप.
क्या मैं अपनी कंपनी की ओनरशिप दे रहा हूँ किसी को, वोटिंग राइट्स दे रहा हूँ किसी को? अगर डिबेंचर्स के थ्रू इशू कर रहा हूँ तो तब नहीं जा रहे हैं, इक्विटी के थ्रू रेज कर रहा हूँ फिर जा रहे हैं बेटा. सो डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल. There are three aspects that we keep in mind while raising funds. सबसे पहला मैंने aspect क्या बोला? Cost. All aspects we will do practically. The first aspect I told you is cost. But cost is not the only aspect. I am simultaneously saying this also. तो अगर कॉस्ट है तो इसका मतलब मेरे को ये मालूम होना चाहिए प्रैक्टिकली कि अगर मैं डिफरेंट सोर्सेज को यूज करता हूं, जैसे इक्विटी को यूज किया, डेट को यूज किया, बैंक लोन को यूज किया, प्रेफरेंस शेयर्स को यूज किया, रिजर्व्स एंड सरप्लस को यूज किया, ये मेरे वैरायटी ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है. और आज की डेट पे तो मार्केट इतना ओपन है कि हम फॉरेन कंट्री से भी बोरोइंग्स कर सकते हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स कर सकते हैं, फॉरेन कंट्री में जाके अपनी कंपनी के शेयर्स को लिस्ट कर सकते हैं, एडीआर, जीडीआर नाम सुना होगा आपने, फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स, फॉरेन बैंक से लोन्स ले सकते हैं. तो हमारे पास सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की कमी नहीं है. चुनना हमें ये है कि किस सोर्स से कितनी कॉस्ट पड़ रही है, और फिर हम उसके बाद नेक्स्ट डिसीजन लेंगे कि हम कौन से सोर्स से कितना पैसा रेज करें. सो फर्स्ट प्रैक्टिकल टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू हिट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. whenever we raise capital we incur cost and we should be practically knowing how to calculate this cost, क्योंकि मेरे अगले डिसीजंस को क्या करने वाला है, हेल्प. सो we start with cost of capital. We start with cost of capital. क्या बोला मैंने अभी तक आपको? फंड्स कैन बी रेज्ड थ्रू funds can be raised through various sources of finance. You will tell me. मैंने अभी लिस्ट किए थे कुछ सोर्सेस. डेट, बैंक लोन मेरे कानों में पड़ रहा है तो वो मैं कह सकता हूँ डेट का ही हिस्सा है. डेट वे सिक्योरिटी है जिसके अगेंस्ट आपको क्या पे करना पड़ता है, ब्याज. फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज, FIVS, ये इसका एक नाम भी है. डेट के अगेंस्ट हम क्या पे करते हैं, फिक्स्ड इंटरेस्ट. तो डेट में बैंक लोन भी आ जाएगा, इंटर कॉर्पोरेट लोन्स भी आ जाएंगे, फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स भी आ जाएंगे, फॉरेन बैंक लोन्स भी आ जाएंगे. हर वे इंस्ट्रूमेंट जिसके अगेंस्ट ब्याज पे किया जाता है वे किस में फॉल करेगा बेटा, डेट में. प्रेफरेंस शेयर्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस. बोले तो ये मुख्यतः चार सोर्सेज हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, फंड्स क्या कर सकते हैं, रेस कर सकते हैं. एक लाइन मैंने और बोली थी, फाइनेंस इज लाइफलाइन ऑफ बिजनेस. एक लाइन मैंने और बोली थी, वी विश टू रेज फंड्स फ्रॉम सोर्स वेयर A, cost is least, B, risk is least, C, dilution of control is manageable. Different dilution of control is manageable. और अब मैंने उसके बाद क्या बोला कि अभी मैं सिर्फ किस पे कंसंट्रेट कर रहा हूं, पॉइंट नंबर ए पर. बाकी वी विश टू रेज फंड्स फ्रॉम सोर्स वेयर, हम एक ऐसे सोर्स से पैसा रेज करना पसंद करेंगे जहां पर उसमें तीन गुण होंगे, कॉस्ट कम हो, रिस्क क्या हो, कम हो, डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल मैं नहीं कह रहा कम हो ज्यादा हो, मैं कह रहा हूं मैनेजेबल.
ज्यादा वोटिंग राइट्स चले गए ना मार्केट में बेटा, तो कोई दूसरा जना आपकी कंपनी के शेयर्स खरीद के आपको टेक ओवर कर सकता है। आजकल कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग भी बहुत हो रही है बेटा, किसी के पास समय ही नहीं है बड़ा बनने का, इमीडिएटली खरीद फरोख्त करते हैं और बड़े बन जाते हैं। मैंने एग्जांपल शायद दिया होगा आपको पहले भी, HDFC बैंक इंडिया का नंबर 1 बैंक बन गया ICICI को पिछाड़ के। कैसे बन गया? मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के थ्रू। बैंक ऑफ पंजाब नॉर्थ इंडिया का बिजनेस उठाया, सेंचुरियन बैंक साउथ इंडिया का बिजनेस उठाया, कुछ ICICI बैंक ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, फ्रॉड हुआ वहां पर, तो HDFC आगे निकल गया। सो डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल में बेटा ध्यान रखना पड़ता है कि बहुत ज्यादा वोटिंग राइट्स वाले शेयर निकल गए हाथ से तो टेक ओवर का खतरा है। मगर क्या मैं शेयर्स बेचूं ही ना? मेरे को बहुत सारे मार्केट में क्या मिलते हैं, कौन दिखते हैं मुझे? बहुत सारे गधे, सॉरी इन्वेस्टर, सॉरी सब नाम लेते हैं इन्वेस्टर्स, जो मेरे 10 रुपए वाले शेयर को 500 में 1000 रुपए में खरीदने को तैयार है बेटा। अभी पीछे आपने IPOs देखे होंगे, पेटीएम का शेयर कहाँ पे गया था? 2200 रुपए पे, फिर लिस्ट हुआ 1700 पे, आज 400 के आसपास घूम रहा है तो वो 10 रुपए वाला ही शेयर। तो हम कह रहे हैं पेटीएम को नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उसने तो पहले ही अपने आप को कितना ऊपर पिचअप किया हुआ था, उसको क्या नुकसान हो रहा है? नुकसान तो किसको हो रहा है? उन इन्वेस्टर्स को जिन्होंने शेयर्स खरीद रखे हैं बेटा उसके। सो 10 रुपए, मैं कहता हूँ मैं 100% डिविडेंड दिया तो 10 रुपए के अगेंस्ट 10 रुपए ही तो दिए, और जेब से कितने निकलवाए हुए आपके? 2000। 2000 के पीछे मेरे को 2000 रुपए दे दो और साल के 10 रुपए ले लेना, कितना अच्छा बिजनेस है बेटा। कोई टेंशन है मुझे? कोई टेंशन नहीं है। कुछ तो करूंगा, 2000 में 10% अर्न करूंगा तब भी 200 रुपए कमाऊंगा, देने तो मुझे क्या है। और थोड़ा सा अगर इसमें डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल हो भी गया तो कौन सी आफत है। सो इट इज अ टाइट रोप वॉक, इट इज अ बैलेंसिंग वॉक। इसलिए मैंने क्या शब्द यूज किए? डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल इज मैनेजेबल। तो मैं इसकी फेवर में भी जा सकता हूं, इसके अपोज भी जा सकता हूं। ये मुझे देखना है सिचुएशन टू सिचुएशन। और मुझे ये समझ में भी आ रहा है कि मैं फंड्स रेज कर सकता हूं इक्विटी से, डेट से, प्रेफरेंस से और रिजर्व्स एंड सरप्लस से। और अब मुझे प्रैक्टिकल सीखना है कि इन सब डिफरेंट सोर्सेस की कॉस्ट अगर कैलकुलेट करें तो कैसे कैलकुलेट करें। सबसे पहले नंबर 1 पे हम शुरू करते हैं, किसकी बात करना? कॉस्ट ऑफ डेट। बेटा कॉस्ट का सिंपल सिंबल जो सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में है वो क्या है? के। कॉस्ट का सिंबल इज के, ठीक है। डेट का सिंबल इज डी, डेट का सिंबल इज डी। तो सिंबॉलिकली व्हाट आई वांट टू कैलकुलेट इज के डी, कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, मैं के डी लिखूं या पूरा कॉस्ट ऑफ डेट लिखूं, दोनों का मतलब क्या होगा? सेम। अच्छा बेटा, किसी चीज की कॉस्ट अगर निकालनी है तो बहुत सिंपल फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला तो सिंपल ही होता होगा और वही हर जगह लगता भी होगा। किसी भी चीज, किसी भी इंस्ट्रूमेंट, किसी भी सोर्स की कॉस्ट निकालनी है तो मैं डिनोमिनेटर में लिखूंगा इस सोर्स को इशू करके मेरे पास कट कटाकर कितना पैसा आया। न्यूमरेटर में लिखूंगा ये पैसा पूरा साल अपने पास रखने के लिए मैंने कितना खर्चा किया। जैसे कि मैंने डिबेंचर इशू करे 10,000 रुपए के और 100 रुपया कमीशन पे करनी पड़ी ये पैसा घर लाने के लिए, तो मेरे पास कट कटाकर कितना पैसा आया? 9900। और मुझे 10% इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, इंटरेस्ट तो हमेशा फेस वैल्यू पे जाएगा, 10,000 का 10% कितना है? 1000 रुपए। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? खर्चा 1000 रुपए। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? कितना पैसा मेरे पास है इस्तेमाल करने के लिए, खर्चा सालाना। तभी तो कॉस्ट क्या आएगी? पर एनम। परसेंटेज में निकालना है तो 1000/9900 मल्टीप्लाइड बाय 100 कॉस्ट निकल आएगी। तो बेसिक फॉर्मूला तो सबका क्या रहने वाला है? सेम। अब मैं इसको जस्ट ओपन अप कर रहा हूँ, आई हैव गिवन यू एन ओवरव्यू। तो कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस फॉर्मूला नहीं है, आपको हमेशा ही समझ में आ रहा है कि डिनोमिनेटर बड़े होने वाला है,
न्यूमरेटर क्या होने वाला है, छोटा। न्यूमरेटर में खर्चा आने वाला है जो सालाना है इस पैसे को यूज करने का, और डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है, हमारे पास कितना पैसा आया है। सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट विद दिस फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ डेट दैट इज KD, कॉस्ट ऑफ डेट। एक मिनट और उसके बाद ओपन करते हैं। डेट के अगेंस्ट वी पे interest. Do you debit this interest in your profit and loss account? Is interest debitable to your profit and loss account? We consider debt as a expenditure, interest on debt as expenditure. Yes. So interest is an expenditure, and interest is debited to profit and loss account. When it is debited to profit and loss account, आपके profits क्या हो जाते हैं बेटा, कम हो जाते, और अगर प्रॉफिट्स भी कम होंगे तो टैक्स भी क्या लगेगा, कम। तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन डेट इज अ टैक्स अलाउड एक्सपेंस। कैन आई से सो इंटरेस्ट ऑन डेट इज अ टैक्स अलाउड एक्सपेंस। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ब्रिंग्स मी टैक्स सेविंग्स। इंटरेस्ट पे करके मुझे टैक्स की क्या होती है, बचत। समझो बात, आपके प्रॉफिट से 1000 रुपए, टैक्स की दर थी 30%। तो अगर कुछ ना होता तो 1000 के ऊपर 30%, 300 रुपए मैं टैक्स पे कर देता। अब मैं क्या पे कर रहा हूं, 200 रुपए ब्याज पे कर रहा हूं। तो 1000 में से 200 रुपए माइनस हो जाएंगे क्योंकि इट इज अलाउड एक्सपेंस। तो मेरे टैक्सेबल प्रॉफिट्स कितने रह जाएंगे बेटा, 800। 800 के ऊपर 30%, कितना टैक्स गया, 240। मुझे क्या हुई बेटा, टैक्स की बचत। कितनी बचत हुई, 60 रुपए। आई हैव सेव्ड हाउ मच, 60 रुपीज। दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू कि एक हाथ तो मैंने डिवेंचर होल्डर्स को 200 रुपया ब्याज दिया, और दूसरे हाथ सरकार ने मुझे 60 रुपए टैक्स की क्या दे दी, बचत। तो मेरी कॉस्ट तो क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी ना। मेरी कॉस्ट 300 तो नहीं हुई, मेरी कॉस्ट कितनी बच गई, 240 रुपए। इस बात का ध्यान मैं फॉर्मूले में रखूंगा। इंटरेस्ट ऑन डेट is a tax genuine business expenditure. It is debitable to your profit and loss account. It leads to tax saving. कितनी की टैक्स सेविंग हुई मेरे एग्जांपल में, 60। मैं कहता हूं बेटा एक फास्ट तरीका बताओ मुझे 60 रुपीज कैलकुलेट करने का, मैं इतनी कहानी बार बार नहीं करना चाहूंगा। तो आप कहोगे सर है एक तरीका, हमें आता है मैथ्स। 60 रुपए ही तो निकालने हैं ना। टैक्स का रेट क्या है, टैक्स का रेट क्या है, 30%। इंटरेस्ट कितना पे किया था, इंटरेस्ट कितना पे किया था, 200। तो एक्सपेंडिचर को जैसे ही मैं टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करता हूं, 200 मल्टीप्लाइड बाय 30%, तो मुझे उस एक्सपेंडिचर से होने वाली टैक्स सेविंग पता चल जाती है। मुझे जरूरी नहीं पूरा कंस्ट्रक्ट करना है, 1000 800 ये बताने की जरूरत नहीं है। टैक्स सेविंग कैन बी कैलकुलेटेड इजीली। तो फॉर्मूला क्या रहेगा टैक्स सेविंग का, एक्सपेंडिचर विच इज अलाउड इन P&L मल्टीप्लाइड बाय द एप्लीकेबल टैक्स रेट। तो अगर 500 का ब्याज हो जाएगा तो कितनी टैक्स सेविंग हो जाएगी, 150 रुपए की। आर यू गेटिंग दिस। चलिए, ये कॉन्सेप्ट था, मैंने ओपन अप किया, फॉर्मूले में आएगा तो पता चलेगा। सो इसका मतलब डेट जौन सा है ना, उसमें एक कॉन्सेप्ट आफ्टर टैक्स भी है और एक कॉन्सेप्ट बिफोर टैक्स भी है। और इसके अलावा भी एक बात है, इंडिया में जब डेट के थ्रू हम पैसा रेज करते हैं, डेट इशू करते हैं, तो उसकी एक लाइफ है, सीमित लाइफ है। उसके बाद तो हमें पैसा चुकाना ही है, प्रिंसिपल चुकाना ही है। हमारा कंपनीज एक्ट ने एक सीमित लाइफ दी हुई है डेट की, से 10 साल। तो आप डिबेंचर अधिक से अधिक कितने समय के लिए इशू कर सकते हैं, 10 ईयर्स के लिए। एंड आफ्टर 10 ईयर्स इट विल मैच्योर एंड यू हैव टू रीपे द अमाउंट्स। बट कई कंट्रीज हैं जहां पे डेट ने भी अमरता का वरदान लिया हुआ, यानी वहां पर वो डेट क्या है, इररिडीमेबल, कभी रिडीम होना ही नहीं। तो डेट भी दो प्रकार का है, या तो रिडीमेबल है या इररिडीमेबल है। इंडिया में तो कौन सा इशू होता है, सिर्फ रिडीमेबल। कल सीए बन के अगर आप पाकिस्तान चले गए, वहां पे इररिडीमेबल डेट हो, तो मैं फॉर्मूले आपको दोनों करा रहा हूँ, पाकिस्तान में करो प्रैक्टिस, इंडिया में करो, दोनों ही आपको आने चाहिए पहले से। तो डेट इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज
redeemable, and second is irredeemable. redeemable का मतलब fixed maturity, fixed maturity, never matures. बस ब्याज देते रहो, पैसा यूज करते रहो, ब्याज देते रहो, पैसा यूज करते रहो, ऐसा क्या है? इरिडीमेबल. मगर इंडिया में कंपनीज एक्ट के तहत कौन सा डेट इश्यू हो सकता है? केवल रिडीमेबल. ओके. तो परमुटेशन कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं बेटा. रिडीमेबल इरिडीमेबल दो शब्द आए, बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स शब्द आए. पहले हमेशा ही कॉस्ट क्या निकलती है? बिफोर टैक्स. और बाद में क्या निकलती है? टैक्स की बचत को एडजस्ट करके आफ्टर टैक्स. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट फॉर्मूला. कॉस्ट ऑफ आईआर. आईआर से क्या मतलब निकाल रहे हो? कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल. डी से क्या मतलब निकाल रहे हो? डेट. और बी से क्या मतलब निकाल रहे हो? बिफोर टैक्स. बी का मतलब क्या है? बिफोर टैक्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस सिंबल नाउ? कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट, पहले मैंने इरिडीमेबल सेगमेंट लिया है, इसमें मैं बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स के फॉर्मूला करूंगा. फिर मैं रिडीमेबल सेगमेंट लूंगा, उसमें भी बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स का क्या लूंगा? फॉर्मूला लूंगा. एंड दीज विल बी द फोर फॉर्मूलाज which we will be using for calculating cost of debt. Is it okay? So you have picture in mind. Let's open it up now. तो सबसे पहले नंबर पे हमने स्टार्ट किया किसको डिस्कस करना? रिडीमेबल डेट को. और हम क्या निकाल रहे हैं? कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट बिफोर टैक्स. आई होप सिंबल इज क्लियर टू यू. Symbol is clear to you. And the formula is very simple. Formula goes like annual interest divided by net proceeds. Let me tell you, financial management is new subject to you, so you will be listening some new terms. I will try to make them as easy as comfortable for you. But yes, the terms of accounts you hear many a times. Here there will be some new terminology coming your way. और अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100. आपकी स्टडी में वो फ्रैक्शन में ही छोड़ देता है. 0.07 लिखूं या 7% लिखूं, बात तो क्या है? एक ही. इज इट ओके? हम आदत रखी हुई है कि हम परसेंटेज में कॉस्ट को निकालें. इज इट ओके? अगर परसेंटेज में निकालनी है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 100. सो लेट्स ओपन अप अगेन. ऊपर क्या लिखा है मैंने? एनुअल इंटरेस्ट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कूपन रेट. इसका एक और नाम भी है, कूपन रेट. कूपन रेट या एनुअल इंटरेस्ट परसेंटेज इज वन एंड द सेम थिंग. And it is always percentage of what? It is always a percentage of face value. आपने 100 रुपए वाला डिबेंचर 10 रुपए डिस्काउंट के ऊपर 90 में इशू किया. डिबेंचर कैरी कर रहा है 12% ब्याज. तो कितना हुआ ब्याज? 12 रुपए. डिबेंचर की फेस वैल्यू तो क्या है? 100 रुपए. आपने 90 लिए, आपकी गलती. आप 110 लेंगे, आपकी अच्छी बात. मगर आपको इंटरेस्ट हमेशा किसके ऊपर पे करना है? इशू वैल्यू पे नहीं पे करना है बेटा. किसके ऊपर पे करना है? फेस वैल्यू के ऊपर. ऑलवेज रिमेंबर, इट इज परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू. पहली बात समझ में आ गई? दूसरी बात पे आते. दूसरा शब्द मैंने क्या यूज किया है? नेट proceeds. How do we calculate these net proceeds? How do we calculate these net proceeds? ये कैसे निकलेंगे? स्टार्ट कहां से करेंगे बेटा? आप हमेशा स्टार्ट कहां से लेना है? फेस वैल्यू से. यू विल ऑलवेज स्टार्ट विद फेस वैल्यू. फेस वैल्यू लिख दी बेटा.
ये तो गिवन ही होती है। अब इसमें कुछ प्लस करेंगे या माइनस। अगर इशू एट प्रीमियम है, इफ द इशू इज एट प्रीमियम, 100 वाला डिबेंचर मैंने 10 रुपए प्रीमियम पे इशू किया, प्रीमियम है तो प्लस, इशू एट प्रीमियम है तो प्लस, और अगर इशू एट डिस्काउंट है तो माइनस। हालांकि इशू एट डिस्काउंट भी इंडिया में क्या है, रिस्ट्रिक्ट किया हुआ, बट ये लॉ चेंज होते रहते, हम तो कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मूला कर। प्लस इज इशू एट प्रीमियम और माइनस डिस्काउंट एट इशू। इशू एट डिस्काउंट या डिस्काउंट एट इशू एक ही बात है। ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस। और अगर कुछ ना लिखा हो तो, कुछ ना लिखा हो मुझे फोन कर लेना, मैं बता दूंगा। फिर इसका मतलब वो किस पे इशू है, पार पे, ना प्रीमियम ना डिस्काउंट। कितना इंपॉर्टेंट हिंट दूंगा ना आपको मैं वहां पे, 100 वाला 100 में इशू हुआ, ठीक है। इशू एट प्रीमियम और इशू एट डिस्काउंट, एंड इट विल बी ऑल्सो परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू। ये भी क्या होगा, परसेंटेज किसका होगा बेटा, फेस वैल्यू। इशूड एट प्रीमियम ऑफ 5%, तो 100 रुपए फेस वैल्यू है तो प्रीमियम कितना आ जाएगा, 5 रुपीज। इशूड एट डिस्काउंट एट 3%, तो 3% किसका होगा, 100। जैसे ही मैं इसमें से कोई एक ही एडजस्टमेंट होगी या नहीं होगी, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड इशू वैल्यू। ये वैल्यू क्या कहलाएगी, दिस विल बी कॉल्ड इशू वैल्यू। मुझे पहुंचना किस पे, नेट प्रोसीड्स। दिस इज नॉट नेट प्रोसीड्स, दिस इज इशू वैल्यू। अब बेटा जब मैं मार्केट में डिबेंचर्स इशू करने जाता हूं या कोई भी इंस्ट्रूमेंट इशू करता हूं, तो मुझे बहुत सारे इंटरमीडिएटरीज, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज को एंगेज करना पड़ता है, उनकी हेल्प लेनी पड़ती है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट से बेचकर उगाई नहीं होती। मुझे मर्चेंट बैंकर, अंडर राइटर, ब्रोकर्स, लीड बैंकर्स, कई तरीके के फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज की हेल्प लेनी पड़ती है। और जब मैं इनसे हेल्प लेता हूं तो ये मुझसे क्या लेते हैं, ये क्या लेंगे, कमीशन, ब्रोकरेज कमीशन। ये कुछ लेंगे, बिना फ्री में तो नहीं मेरी हेल्प करेंगे। ब्रोकर कहेगा ठीक है मैं आपके डिबेंचर बिकवा देता हूँ और आपसे 2 रुपए लूंगा या 2% लूंगा, कोई एक बात तो कहेगा ना वो। इसको हम मिला जुला कर क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन। क्या नाम देते हैं, कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन। यानी इस इंस्ट्रूमेंट को मार्केट में फ्लोट करने में कितना खर्चा पड़ा। तो इसमें से माइनस क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन। what I am going to subtract is cost of flotation. It includes what, brokerage, commission, fees, whatever of whom, financial intermediaries। और कौन है आपके फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, मैं एग्जॉस्टिवली नहीं बोल सकता हूं, बट मैंने इलिस्ट्रेटिवली नाम लिया, जैसे कि मर्चेंट बैंकर, जैसे कि अंडर राइटर, जैसे कि लीड बैंकर, जैसे कि ब्रोकर, ईटीसी। मर्चेंट बैंकर का नाम सुना आपने, +2 में पढ़ा, मर्चेंट बैंकर नाम पढ़ा, +2 में पढ़ा, थ्योरी पढ़ी नहीं, वेरी गुड। अंडर राइटर तो जरूर सुना, क्योंकि इसका तो प्रैक्टिकल टॉपिक भी था, इसलिए समझे। क्या करता है अंडर राइटर, साडा मुंह काला होने तो चाहता सानू जब भी शेयर इशू करने हैं उस 90% should be subscribed, and in case it is not subscribed the issue will be cancelled and we have to refund the money along with letter of regret. We want to avoid that situation, so we engage an underwriter. In case we are under subscribing, it will buy the under subscribed number of shares and make our issue successful. Once the issue fails for next 2 years, there will be a self-imposed moratorium and we will not be able to issue again for next 2 years. We want to avoid this unpleasant situation.
सो वी हायर द सर्विसेज ऑफ अंडर राइटर. सो अंडर राइटर ये करता है. लीड बैंकर क्या करता है बेटा? जब आप कोई इंस्ट्रूमेंट इशू करोगे किसी बैंक खाते में तो आएंगे ना बेटा पैसे. आप किसी बैंक को अपॉइंट करोगे, भाई जो भी एप्लीकेशन मनी है इस खाते में इस बैंक में पैसा है, वो बैंक क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड लीड बैंकर. ब्रोकर आप समझते हो, जो एडवर्टीजमेंट करता है आपके बिहाफ पर, फॉर्म बेचता है आपके, वो कौन है? ब्रोकर. और जो ये सारे काम करे वो कौन है? वो कौन है? मर्चेंट बैंकर. वो आपका रिकॉर्ड भी बनाता है, वो आपका प्रोस्पेक्टस भी बनाता है, वो आपके इशू किस दिन को खुलना है किस दिन को बंद होना है, सारी कंसल्टेंसी, मिली जुली कंसल्टेंसी करे, वो कौन है? मर्चेंट बैंकर. ओके. तो ये फ्री में नहीं काम करते, ये कुछ चार्ज करते. ये थ्योरेटिकली आ जाए कभी 2 नंबर का तो यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन. ये माइनस करनी पड़ेगी कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन. और ये किसका परसेंटेज है? दिस इज परसेंटेज ऑफ इशू वैल्यू. क्योंकि वो तो घर में क्या लाकर दे रहा है? 90 रुपए या 110 रुपए. वो जितने पैसे ला रहा है ना उसका कमीशन. या तो वो एब्सोल्यूट टर्म्स में बता दे 200 रुपए 300 रुपए, फिर तो मुझे कोई समस्या नहीं है. मगर जो वो परसेंटेज में बताए तो वो परसेंटेज किसकी होएगी? इशू वैल्यू. एंड नाउ यू विल अराइव एट द फिगर ऑफ व्हाट? नेट proceeds. You will arrive at the figure of net proceeds. Are you getting this? So I have told you how to calculate numerator, how to calculate denominator, and you will be able to reach the point where we will be able to work out what is cost of irredeemable debt before tax. ये दोनों निकल के 100 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ जाएगा बेटा. So simple. And the B formula is cost of irredeemable debt after tax. How to make it after tax? Before tax, after tax. How to make it after tax? बिफोर टैक्स में से टैक्स सेविंग माइनस कर दो. बिफोर टैक्स में से टैक्स की बचत माइनस कर दें, आ गया. सो इट इज कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स 1 माइनस टी. एंड व्हाट इज टी? टी इज द टैक्स रेट. कोई बहुत ज्यादा मुश्किल फॉर्मूला है ही नहीं. 1 माइनस टी. व्हाट इज टी? टी इज द टैक्स रेट. मान लो आपकी बिफोर टैक्स कॉस्ट आई थी कितनी? मेरा एग्जांपल याद करो, 10%. ठीक है. अब मैं उसको आफ्टर टैक्स बनाना चाह रहा हूं. टैक्स रेट था मेरा कितना? से हाउ मच वाज द टैक्स रेट? 30% या 20%, वॉट एवर, जो भी रखना चाहो. सो अगर 30% है तो टी क्या आ जाएगा? 30%. 30% लिखो यानी कि 0.3. तो 1 माइनस 0.3 कितना रह गया? 0.7. 10% मल्टीप्लाइड बाय 0.7 कितना हो गया? 7%. यानी जो कॉस्ट बिफोर टैक्स 10% थी, वे आफ्टर टैक्स क्या है? 7% है. सो दिस इज सिंपल. इट इज टोटली सिंपल. हाउ टू मेक इट आफ्टर टैक्स? सिंपली मल्टीप्लाई इट विद 1 माइनस टी. क्योंकि टैक्स की बचत तो किसके ऊपर होनी है? इंटरेस्ट के ऊपर ही होनी है, कॉस्ट के ऊपर ही होनी है. इज इट ओके? कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया cost of irredeemable debt after tax annual interest 1 minus t divided by what? Net proceeds into 100. ऐसा भी लिख सकते हो आप, पूरा ओपन भी कर सकते हो फॉर्मूला. ओके, इट इज द सेम फॉर्मूला व्हाट आई हैव रिटन बिफोर आल्सो. एक इलिस्ट्रेशन करिए फिर मैं मूव करूंगा नेक्स्ट फॉर्मूले पे. कंपनी issued 12% 1000 rupees 10 each debentures at the rate A, 10% premium, B, 5% discount, C, par. Tax rate is 30%.
calculate cost of debt. Calculate cost of debt. This is my question. Before you solve, just give me 1 minute. आप कहोगे सर आपके पेन में इंक नहीं है या हाथों में कोई प्रॉब्लम है, कह नहीं सकते वैसे, ऑब्वियसली सोच सकते हो मन में. सो ये कॉस्ट ऑफ डेट पूछ लिया आपने, कुछ नहीं लिखा, इरिडीमेबल है, रिडीमेबल है, बिफोर टैक्स है, आफ्टर टैक्स है. क्या करें, केडी तो आपने जेनेरिक पूछ लिया. पूछोगे मुझसे ये, विल यू आस्क मी? हाँ, यू विल नॉट आस्क मी, तुम बच गए. अगर कोई कहता कि नहीं सर पूछेंगे, तो मैं कहता हूँ तुम दिमाग घर छोड़ के आए हुए. क्वेश्चन को पढ़ो और अपने आप समझो क्या पूछा गया. टैक्स रेट दिया गया तो इसका मतलब क्या निकलेगा, आफ्टर टैक्स. कोई रिडम्पशन का टाइम नहीं दिया हुआ तो क्या निकलेगा, इरिडीमेबल. है ना दिमाग. तो क्वेश्चन इज नॉट इनकम्प्लीट. यू हैव टू रीड इट and see the information inbuilt and you have to proceed accordingly. So you saved yourself. Now please proceed. पीछे फॉर्मूला देखना अलाउड है, आपस में बात करना भी अलाउड है. मैंने 3 आंसर्स पूछे, 3 सिनेरियो पूछे. तो आप समझ गए कि आप इरिडीमेबल डेट का कर रहे हैं. वैसे भी समझ गए, मैंने कोई और फॉर्मूला ही नहीं कराया अभी आपको. %12 ब्याज वाले 1000 डिबेंचर इशू करे हैं. एक डिबेंचर की फेस वैल्यू क्या है, 10 रुपए. एक हिंट बेटा, जैसा न्यूमरेटर वैसा डिनोमिनेटर. आपको एक इनिशियल हिच आ रही है. सर ने सारे एग्जाम्पल में एक एक डिबेंचर बताया था, अब 1000 आ गए. तो बेटा 1000 डिबेंचरों का अगर ऊपर इंटरेस्ट लिखोगे तो नीचे जो नेट प्रोसीड है वो भी किसकी लिखोगे, 1000 डिबेंचर की. अगर न्यूमरेटर में एक डिबेंचर का ब्याज लिखोगे तो नीचे नेट प्रोसीड भी किसकी लिखोगे, एक डिबेंचर. तो जैसा न्यूमरेटर वैसा डिनोमिनेटर. टोटल इशू का कैलकुलेट करना आसान होता है. तो टोटल इशू की फेस वैल्यू क्या है, 1000 डिबेंचर इशू करे 10 रुपए के, तो फेस वैल्यू क्या है, 10,000 रुपए. दोनों से आंसर सेम आएगा क्योंकि परसेंटेज में चाहिए ना आंसर बेटा. Yes, now proceed. I am giving you 1 minute to complete. %12 किसी में भी नहीं आंसर है. बिफोर टैक्स नहीं मैंने पूछा बेटा, आफ्टर टैक्स पूछा. जब टैक्स रेट दिया हो ना क्वेश्चन में, तो इसलिए वो बोले ना बोले. जब टैक्स रेट दिया हो क्वेश्चन में, वो बोले ना बोले, क्या निकालेंगे, आफ्टर टैक्स. After 1 minute, I will be solving and you will be just comparing. Will not make noise. You can make as much as you wish now. बस ठीक है, चेक करना, क्रॉस चेक. Solution. We are supposed to calculate cost of debt irredeemable after tax. And the formula is annual interest upon this is the formula. Now you remember the formula. वैसे भी ये लॉजिकल है.
एक एक चीज भरेंगे केस ए में। ए बी सी 3 सिनेरियो पूछे ना मैंने आपको, मगर सब में फेस वैल्यू तो सेम ही रहने वाली है। कितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स है, मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू पर डिवेंचर कितनी है बेटा, तो कितने आ रही है फेस वैल्यू। इसमें कोई प्रॉब्लम, आप एक डिवेंचर से भी सॉल्व कर सकते थे, आंसर उससे भी सही आता है, ऐसा नहीं था। तो ए में पहले एनुअल इंटरेस्ट निकालने बेटा। एनुअल इंटरेस्ट इज फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज इंटरेस्ट। फेस वैल्यू क्या है 10,000, और ये हर केस में क्या रहने वाली है, सेम ही रहने वाला। अब एक केस पे पहले नेट प्रोसीड्स निकालते हैं बेटा। एक केस में नेट प्रोसीड्स के लिए क्या है, इशू किस पे है 10% प्रीमियम। तो स्टेप्स क्या है हमारे, फेस वैल्यू लिखा प्लस इशू प्रीमियम कितना है 10%, और वो किसका होएगा 10% फेस वैल्यू का, एंड व्हाट यू विल गेट इज इशू वैल्यू इज हाउ मच 11,000 माइनस कोई है कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन दी मैंने तो जबरदस्ती ढूंढना भी ना, कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन है 0। जब और क्वेश्चन बनाऊंगा उसमें दूंगा भी बेटा। तो इसका मतलब यहाँ पे नेट प्रोसीड्स कितनी आ रही हैं 11,000। आप पूरे स्टेप्स लिखिए चाहे, ताकि एग्जामिनर आल्सो नोज दैट यू हैव बीन टॉट वेल। सो आप लिखिए नाउ, कैन आई फीड इट इनटू द फॉर्मूला, गेट माय आंसर। सो लेट्स फीड इट। एनुअल इंटरेस्ट कितना आया, नेट प्रोसीड्स 1 minus tax rate. Can I write like 0.3? Can we work it out now? Simplify it. What you get is न्यूमरेटर में क्या आ गया 840, 1200 multiplied by 0.7 is 840 divided by into, we will get answer as in percentage 7.63%। तो पहले ए पार्ट का आंसर कितना है 7.63%। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजर को फायदा हो रहा है यहाँ पे या नुकसान हो रहा है, थोड़ा सा दिमाग भी साथ साथ लगाना है। फायदा हो रहा है ना। ब्याज की दर तो क्या थी 12%, मगर मेरे लिए कॉस्ट क्या पड़ रही है 7.63%। कारण पूछूं तो आप कहेंगे दो कारण सर। कारण नंबर 1 टैक्स की बचत, और दूसरा आपने 100 वाला शेयर प्रीमियम पे इशू किया है। आए तो घर 110 है और ब्याज देना पड़ रहा है किस पे 100 पे, इसका भी बेनिफिट हो रहा है, इसलिए आपकी कॉस्ट ऑफ डेट क्या हो रही है कम। तो मैं क्या बोल सकता हूं ये बात कि अगर मैं कोई इंस्ट्रूमेंट प्रीमियम पे इशू करता हूं तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाती है कम। सिंपल सी लॉजिक है ना, आगे दोबारा भी रिपीट करूंगा लॉजिक। ठीक है, बी पार्ट देखिए, सिर्फ नेट प्रोसीड्स देखें उसकी। फेस वैल्यू स्टार्ट कहां से लिया, फेस वैल्यू क्या लिया 1000 माइनस डिस्काउंट ऑन इशू। बेटा ये देखिए इसमें समझ में आ जाएगी, दोबारा से रिपीट करूंगा कोई दिक्कत नहीं। डिस्काउंट ऑन इशू कितना किया डिस्काउंट इशू 5%, ये किसका होगा, अभी कॉस्ट क्या हुई 95। ठीक है, एनुअल इंटरेस्ट तो वही रहा है कितना है माइनस कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन क्या है 0, तो नेट प्रोसीड्स क्या है। आप देख रहे हो मैं हर स्टेप लिख रहा हूँ, एग्जामिनेशन में भी वी एक्सपेक्ट कि आप पूरे स्टेप्स क्या करोगे लिखोगे, स्टेप मार्किंग होती है, कहीं पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई या न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में मिस्टेक हुई, प्रपोर्शनेट नंबर कटेंगे। जो भी आपके दिमाग में है ना वो एग्जामिनर को तो नहीं पता है, जो आप लिखोगे वो पता है। इज इट ओके? सो कॉस्ट ऑफ डेट इररिडीमेबल बिफोर नहीं क्या निकालनी है आफ्टर टैक्स, फॉर्मूला सीधा फीड करें
एनुअल इंटरेस्ट कितना आ गया 1200, 1 माइनस टी कितना आ गया, आप कहोगे 30%, 30% या फ्रैक्शन में लिख दो 0.3 इज 1 एट द सेम थिंग, डिवाइडेड बाय, सॉल्व फॉर न्यूमरेटर 840, क्या है कॉस्ट, बढ़ गई ना कॉस्ट बेटा, कारण क्या है, डिस्काउंट। जब मैंने डिस्काउंट पे इशू किया ना, ऐसे भी देखो जैसे ही डिनोमिनेटर छोटा होगा आंसर क्या हो जाएगा बड़ा, मैथ, डिनोमिनेटर छोटा क्यों हुआ, डिस्काउंट इशू। तो मैंने घर तो लेके आया 9500 रुपए, मगर खर्चा किस पे इनकर कर रहा हूँ, 10,000, तो मेरे लिए खर्चा क्या हो गया, बढ़ गया 8.84%। एंड द थर्ड केस C1, cost of debt irredeemable after tax, सीधा फीड करें, 1200 इज एनुअल इंटरेस्ट, 1 माइनस 0.3 डिवाइडेड बाय, अब नेट प्रोसीड्स क्या है बेटा, फेस वैल्यू क्या थी 10,000 माइनस डिस्काउंट प्लस प्रीमियम क्या था, कुछ था ही नहीं, इशू वैल्यू भी क्या थी, माइनस कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन भी नहीं थी, तो इसका मतलब नेट प्रोसीड्स कितनी आ गई 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000, 100, 8.4। So you solved correctly, you were doing correct, so it was simple है ना, कोई ज़्यादा प्राइस प्रूइस नहीं दे रहा मैं इसमें, करेक्ट ही करना चाहिए था, फॉर्मूला आपके सामने था, चीटिंग आपको अलाउड थी, तो करेक्ट ही करना चाहिए। सो फर्स्ट फॉर्मूला यू हैव लर्न, यू हैव गॉट द बेसिक, बाकी फॉर्मूलाज भी देखो थोड़ा सा चेंज होंगे, मगर कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा, ऊपर खर्चा नीचे पैसा, multiplied by 100 into percentage. Is it okay? We open up the next one. Cost of redeemable debt before tax. Cost of redeemable debt before tax. So I am opening this formula. Be careful now. There are two ways to solve it. There are two ways to solve it. One is exact solution, or called as time value method, and second is approximation method. And you will be using only approximation method. There are two methods, हर जगह जाने के दो रास्ते तो होते ही हैं, ठीक है ना, तो two ways are there. वैष्णो देवी जाना है, घोड़े पे चले जाओ, ऑटो पे चले जाओ, दो से ज़्यादा ही बन रहे हैं रास्ते, तो पैदल भी जा सकते हो, ठीक है, पैदल में श्रद्धा थोड़ी सी ज़्यादा आती है, नंबर भी शायद आपके थोड़े ज़्यादा आ जाए बाद में, बट अप्रॉक्सीमेशन में भी ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं होगी, मेन मंदिर के तो दर्शन हो ही जाएंगे। हाँ अगर ऐसे सोचे तो, बट दर्शन तो उसमें भी हो ही जाएंगे, ठीक है। सो अप्रॉक्सीमेशन मेथड देखो बेटा जल्दी हो जाएगा सॉल्व, और 99% एक्यूरेट है, और इतना हमारे लिए मटेरियली सफिशिएंट। टाइम वैल्यू मेथड मैं सिखाऊंगा आगे जाकर किसी और जगह पर, वो टाइम कंज्यूमिंग है, उसमें हमें बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, टाइम लगता है। क्वेश्चन 8 नंबर का, 8 नंबर में डेट की कैलकुलेशन 2 नंबर की, तो मैं उसमें 20 मिनट तो नहीं लगा सकता ना कैलकुलेट करने के लिए, मुझे तो 1 मिनट ही मिलेगा। So approximation method is what I am going to follow. What why I am saying so? आपकी बुक ऐसा कहती है और फिर करती नहीं है, इंस्टीट्यूट वाली बुक, वो क्या करती है कि आपको दिखाने के लिए, डराने के लिए, दो क्वेश्चंस में तो अप्रॉक्सीमेशन मेथड से सॉल्व कर दिया, एक दो क्वेश्चन में उसने टाइम वैल्यू मेथड से भी सॉल्व कर दिया,
फिर सारे बच्चे आ जाते हैं बुक पकड़ के, सर इसने ये क्या कर दिया, ये तो हमने कभी देखा नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं। मत देखो, अप्रॉक्सीमेशन मेथड से सॉल्व करो, क्या फर्क पड़ेगा डेसिमल में, 0.1 0.2 का, हार्डली मैटर्स। ओवरऑल आंसर पे बहुत ही मिनिमल। हमें मेटेरियलिटी को भी ध्यान में रखना है, टाइम को भी ध्यान में। इट ओके। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मेथड सीखेंगे आगे चल के, कैपिटल बस्टिंग में सिखाऊंगा, और तब अपने आप भी ये राय आपकी बन जाएगी कि अप्रोक्सीमेशन मेथड से ही हमें इस चैप्टर में क्या करना है, सॉल्व करना है। इज इट ओके? द फॉर्मूला गोज लाइक दिस, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट पहले बिफोर टैक्स और बाद में आफ्टर टैक्स। एनुअल इंटरेस्ट रहेगा प्लस 1/YTM, 1/YTM। कई बार बुक्स में लिखा होगा 1/N, N is nothing but YTM। YTM stands for years to maturity। YTM का मतलब क्या है? years to maturity। मेरे ख्याल से समझ में आ गया कितने समय के बाद ये डिबेंचर मेच्योर होने जा रहा है। दैट इज कॉल्ड years to maturity, क्योंकि रिडीमेबल है ना। ब्रैकेट में अब देखो, मेच्योरिटी के ऊपर पैसा देना पड़ेगा ना। जो मेच्योरिटी के ऊपर पैसा मिलता है उसको कहते हैं मेच्योरिटी वैल्यू। जो मेच्योरिटी पे पैसा मिले उसे को कहते हैं मेच्योरिटी वैल्यू। बुक्स में एमवी लिखा होता है, कई बार बच्चे एमवी से समझ लेते हैं मार्केट वैल्यू। नो, यहाँ पे इस कंटेक्स्ट में वो मार्केट वैल्यू नहीं है, वो क्या है, मेच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स divided by, whole divided by half of maturity value plus net proceeds, whole into bracket। अभी आंसर किसमें है, फ्रैक्शन में। परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो मल्टीप्लाइड बाय। appears to be little lengthier formula but it is not। couple of times you'll apply, you'll remember thereafter, कुछ कठिनाई नहीं आएगी आपको। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट बिफोर टैक्स। अब रिडीमेबल है ना, तो रिडम्पशन का कुछ तो आना ही था ना फंडा। तो मेच्योरिटी के ऊपर हम पैसा दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मेच्योरिटी वैल्यू। नेट प्रोसीड्स कैसे निकालते हैं ये हम सीख चुके हैं। एनुअल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं ये हम सीख चुके हैं, वो तो सेम फंडा ही रहने वाला है। YTM ये हमेशा ही क्या होगा, गिवन होगा। निकालना क्या रह गया बेटा, इसका फॉर्मूला भी सीखते हैं। स्टार्ट कहां से करेंगे, हमेशा की तरह फेस वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। अब मेच्योरिटी भी बेटा कितने सिनेरियोज हैं मेच्योरिटी के। 100 रुपए वाला डिबेंचर जब मेच्योर होगा तो आप कितने पैसे दोगे मेच्योरिटी पे, एट पार, एट प्रीमियम। मिलते नहीं मुझे लोग, मैं तो करना चाहूंगा, मेरे को ऐसे मिलते ही नहीं है लोग। थोड़े से अक्लमंद लोग होते हैं, वो कहते हैं नहीं डिस्काउंट पे नहीं मेच्योर कर। इंडिया में अलाउड भी नहीं है डिस्काउंट पे मेच्योरिटी। और ऐसे मतलब मैंने बहुत कोशिश करी लालटेन लेके जाकर ढूंढने की, ऐसे कुछ मिल जाए लोग जो कहीं आज तो 100 रुपया ले लो दे देना 80 रुपये, मिले ही नहीं। तो डिस्काउंट पे होता नहीं है मेच्योर। सो मेच्योर होगा या तो एट पार या फिर एट प्रीमियम। अगर प्रीमियम पे होगा तो ज्यादा पैसे वापस करने पड़ेंगे, प्लस प्रीमियम ऑन मेच्योरिटी। दो चीजें हैं बेटा, एक प्रीमियम ऑन इश्यू था वो अलग था, उसका ट्रीटमेंट नेट प्रोसीड्स में था। ये क्या है, प्रीमियम ऑन मेच्योरिटी, इसका ट्रीटमेंट कहां पर है, मेच्योरिटी में। इसलिए वर्ड्स को ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। फेस वैल्यू का ही ये क्या है, परसेंटेज। टू मेच्योर एट 5% प्रीमियम, तो 5% किसका होएगा बेटा, ये फेस वैल्यू।
डिस्काउंट में मेच्योरिटी होती नहीं है, और एट पार होगा फिर तो कुछ करना ही नहीं है. दिस विल बी कॉल्ड it is at par or premium. It is at par or premium. This is called maturity value. बस ये भी फॉर्मूले में डाल देंगे, कहानी खत्म हो जाएगी. अब लास्ट फॉर्मूला दैट आई हैव टू लर्न इज कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट आफ्टर टैक्स. और वो सिंपल ही है, जो मेहनत करनी थी मैं कर चुका. कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट आफ्टर टैक्स एनुअल इंटरेस्ट 1/n. n लिखूं तो YTM, years to maturity. Maturity value minus net proceeds. यहां तक सब कुछ क्या आ रहा है? सेम. यहां तक सब कुछ क्या है? सेम. अब बेटा टैक्स की बचत ना ऑपरेशनल एक्सपेंस पे होती है, जो P&L में डेबिट होता है. कैपेक्स पे नहीं होती है कभी भी. जो बैलेंस शीट में जाता है ना, उन चीजों पे कोई टैक्स की बचत नहीं होती. तो टैक्स की बचत केवल और केवल किस पे होनी है? एनुअल इंटरेस्ट पे. तो 1 माइनस टी किसके आगे लगेगा? कई बुक्स क्या करती है, पूरा निकालने के बाद 1 माइनस टी करती है. नहीं, 1 माइनस टी तो किसके साथ लगना है? आप कहोगे पहले क्यों कर दिया था, पहले था ही एनुअल इंटरेस्ट. ओके, तो 1 माइनस टी कहां पे मैंने अफिक्स किया? एनुअल इंटरेस्ट के साथ. ठीक है. शेल वी एंड द क्लास विद सम होमवर्क. एक होमवर्क दे रहा हूं आपको, वो करना है आपने. क्वेश्चन क्या है? आई एम सेविंग माई एफर्ट. Question is the same. I am adding things to this. Question is the same. Tax rate 30% matures after 5 years at premium of 3%. एक वर्ड ऐड किया बेटा. Matures after 5 years at premium of 3%. Brokerage cost 2%. बस ये 2 लाइन्स ऐड करें. I have added only these 2 lines. And I have asked you to calculate cost of debt. You are wise enough now to calculate cost of redeemable debt, and that too after tax in all 3 scenarios. ये इशू है, ये इशू के साथ है चीजें, और ये मेच्योरिटी के साथ. ठीक है. So this is your homework. You have formulas. 99% of you will do it correctly. First just go through the formulas. पूरा लिखो फिर फीड करो. एक बार ये एप्लीकेशन सीखो, उसके बाद यू विल ऑब्वियसली फॉर्मुलेट अ स्पीड. यहीं तक करते हैं. Yes, those who are online, do they have to ask anything? Shall I close the class then?